Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 25. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue from there. So in the last lecture, we were looking that if you want to have something not single value, but it's a continuous and with spaces and integer and alphabets and everything mix. So is it possible to take it from a keyboard and on runtime? So yes, it was, and we were using a function called readLine function. After that, we learned that if we want to assert a string, how we can do it, and there are some specification because we need to put quotations on both sides, and then we can assert the string. And then we learned some other functions. There were a lot of small functions which were quite a handful and useful for different situations. And then if there is a requirement in some application or development in some specific algorithm, then you can use these kind of functions. Today we will move on, and then we will learn some other basic things that normally we need in procedural languages. And in here, if we need to have some specific procedures, then how we will use it and what kind of things we can use. So most of the things which are available in procedural languages, it is already available in here also. In here means in Eclipse environment. And what are these? Actually, we will learn today if then else function, how we can use it. It is called a function because everything in Eclipse are normally functions. As you remember, when we were adding some values, then we give the function name, which is a plus, and then we give two arguments, and then these two arguments are add up, and we already know that we are in a prefix notation form. Then today we will also learn while loop, and then we will learn some other functions, how we can make function, our own function, user defined function, how we can do it. And then we will learn some handful small functions like loop for count, and then some other count the numbers and different things which are quite helpful in development of expert system. So first of all, we will go through if then else function, what it is, and we will learn in detail how we can apply it and where we can write it. The if function provides an if then else structure to allow for conditional execution of a set of actions. हम इसमें normally जो conditions रखते हैं, जब वो conditions fulfill होती हैं तो हम if और else में किसी भी एक साइड पे जा सकते हैं. हम देखते हैं कि ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो हमें बार बार डिफरेंट रूल्स कॉल करने पड़ेंगे और उनके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम असर्ट करें और वहाँ से आगे जाएं. अब कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए और हम वो राइट हैंड साइड पे चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं वो वैल्यूज़ और फिर हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अब ऐसी सिचुएशन में हम बार बार रूल्स बनाने से बचने के लिए हम इफ़ देन एल्स भी यूज़ कर सकते हैं. जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस से और फिर हम बताएंगे कि इफ़ कीवर्ड है और फिर साथ में हम एक्सप्रेशन देंगे कि क्या एक्सप्रेशन चेक होनी चाहिए यहाँ पर. फिर उसके बाद हम बताएंगे देन, और हम एक्शन बताएंगे कि क्या एक्शन करना है. ये एक्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं, और साथ में हम एल्स जो है ये ऑप्शनल है. अगर तो हम चाहते हैं कि एल्स दें तो एल्स देकर हम और एक्शंस बता सकते हैं, और हम इसको हायरार्किकल वे में भी कर सकते हैं कि हम एक इफ़ हो, नेस्टेड इफ़ हो, वो भी कर सकते हैं हम. तो डिफरेंट किस्म के अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए.
Any number of allowable action may be used inside of the then or else portion, including another if then else structure. The else portion is optional. हम जो बात हम अभी कर रहे थे कि हम if और then else वाली जो ऑप्शन है उसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, हम नेस्टेड भी कर सकते हैं कि डिफरेंट if और else की combinations हो. If expression evaluates to anything other than the symbol false, then the action associated with the then portion are executed. यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो एक्सप्रेशन है, जो इफ़ के साथ एक्सप्रेशन हम बताएंगे कि ये एक्सप्रेशन अगर कुछ प्रोड्यूस करता है ना कि फॉल्स हो, तो फॉल्स के अलावा अगर हमारे पास कोई आंसर आता है, वो डिपेंड करता है हम किस तरह की कंडीशन रखते हैं, तो वो करेगा क्या, हम देन की तरफ चले जाएंगे और देन में जो भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. वो हमारे पास कोई और फंक्शन कॉल भी हो सकती है, कोई और इफ़ देन एल्स कंडीशंस भी हो सकती है, या हम असर्शंस कर सकते हैं, हम डिफरेंट सिचुएशंस उसके अंदर बना सकते हैं. Otherwise the action associated with the else portion are executed. और हमें ये पता है कि अगर if condition fulfill नहीं होती तो else में हो जाएगा, और else के सिचुएशन में नॉर्मली else में भी हम एक्शन ही बताते हैं कि क्या एक्शन करना चाहिए, और एक्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, और वो भी हमारे पास और भी if और then conditions हो सकते हैं. The return value of the if function is the value of the last expression or action evaluated. अगर हम कुछ रिटर्न करना चाहते हैं if और else से, तो वो हमारे पास जो लास्ट एक्शन है जो हमने आखिर में किया है, जो एक्सप्रेशन हमने हमारे पास एंड पे आया है, हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, वो हमारे पास एज अ रिटर्न वैल्यू आ रही होगी इस if. क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है कि हमारे पास जो भी है वो फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं, तो ये क्योंकि फंक्शन है इफ़ और एल्स वाला जो कंडीशन है, तो ये हमारे पास कुछ रिटर्न भी करता है. तो वो रिटर्न क्या होगा, वो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा. अगर हम चाहते हैं कि उसको चेक करें, वो वैल्यू हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं. अब हम जाएंगे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ, छोटे सा हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको इसकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. हमने क्लिप्स के विंडो ओपन कर लिया. अब हम करते ये हैं कि हम सिंपल सा रूल बनाते हैं, इसको लोअर केस में करते हैं क्योंकि हमारे पास क्लिप्स जो है वो केस सेंसिटिव है. अब हम ये करेंगे कि हम कोई ऐसा रूल बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर चेक करते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ गया हो तो हम उसको एसी को ऑन करें, और अगर तो कम है तो हम एसी को बंद कर दें. हम रूल बना रहे हैं जिसमें हम इनिशियल फैक्ट जो है उसको इनिशियलाइज कर देंगे. हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे एज अ रूल जो एवेल्यूएट हो, तो जाहिर है हमारे पास ये रूल एक्टिवेट हो जाएगा रीसेट करने से. अब हम ये करेंगे कि हम प्रिंट आउट करते हैं, ठीक, और हम सिंपली बताते हैं कि टेम्परेचर जो है वो उसको एंटर करें कि क्या टेम्परेचर है. ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं. अब हम करेंगे ये कि हम ये वैल्यू जो है ये बाइंड करते हैं किसी वेरिएबल में. हमने वेरिएबल बनाया टेम्प के नाम से, और रीड करते हैं इसको, और हम एक वैल्यू लेंगे, तो इस वजह से हम रीड ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं. अब मैं करता ये हूँ कि मेरे पास ये वैल्यूज़ तो आ गई, इंटर हो जाएंगी, टेम्प में आ जाएगा. इसके बाद में यहाँ पर इफ़ कंडीशन स्टार्ट करता हूँ, जो हमारा मकसद है सीखने का. इफ़ कंडीशन स्टार्ट हुई, अब मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है. मैं बताता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर वेरिएबल देता हूँ टेम्प,
और फिर मैं बताता हूँ कि अगर 35 से ग्रेटर है और इक्वल है तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिर क्या करें, देन में क्या करेगा, हम जो एक्शन हम देन के बाद बताएंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। हम सिंपल बताते हैं, अगर तो हमारे पास फिज़िकल कनेक्शंस हो गए पैरेलल पोर्ट के थ्रू सिस्टम के, तो हम सिग्नल भेज सकते हैं कि ऐसी ऑन हो जाए। अदरवाइज हम ये जो सिंपल मैसेज अभी प्रिंट करते हैं। हम यहाँ पर अब टेम्प बताते हैं और ये वेरिएबल हमने बता दिया साथ, क्योंकि हम इसको प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, तो हम इसको कोट्स से बाहर कर देंगे। तब मैं दोबारा बताता हूँ कि टर्न ऑन द एसी। ये मैंने प्रिंट आउट किया। अब मैं अगर एल्स में जाना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रिंट आउट टी, यहाँ पर मैं दूसरा मैसेज दे सकता हूँ, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू मैसेज दिया हुआ है एक्सप्रेशन में। इस वजह से अगर तो वो ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा तो हमारे पास हमेशा ये वैल्यू एसी ऑन करने का मैसेज प्रिंट होगा। अगर तो उससे लेस होगा, जाहिर है जब हम ग्रेटर देन होंगे तो हम 35 से अबव होंगे। तो अगर तो इससे कम होगा तो वो हमारे पास ये बताएगा कि टेम्परेचर जो है वो लो है। Turn off the AC। ये अगर हम मैसेज देना चाह रहे हैं तो हम इसको भी कोट्स के अंदर करते हैं। और यहाँ पर हम टेम्प को साथ में प्रिंट भी कर देंगे। और अब हम करेंगे ये कि हम अपने इफ़ को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद अपने रूल को क्लोज कर देंगे। हम इंटर करते हैं, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आप जो मिसिंग फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर प्रिंट आउट जो हमने प्रिंट आउट बता रहे हैं उसमें हमने मिस्टेक की है। तो हम जो पहला प्रिंट हमने लिखा था वहाँ हमने ठीक ही मिसिंग हो गया था, इस वजह से हमारे पास एरर आ गया। अब हम दोबारा इसको करते हैं तो हमारे पास रूल जो है एक्टिवेट हो गया, क्योंकि हम पहली मर्तबा रूल को एक्टिवेट कर रहे हैं। पहली मर्तबा इसको हमने डिफ़ाइन किया है, इस वजह से वो कॉल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, रन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया,
पॉइंटर के साथ, और इसका मतलब ये कि हमें कोई वैल्यू इंटर करना होगा। तो हम वैल्यू इंटर करते हैं 30, तो हमारे पास क्या आया, द टेम्परेचर इज़ नॉर्मल विच इज़ 30, टर्न ऑफ द AC। हमारे पास एक मैसेज आ गया। अब हम रीसेट करते हैं, सॉरी हम दोबारा रीसेट करते हैं। रीसेट करने से हमारे पास जो रूल था वो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको फायर करने के लिए हम इसको रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो ये हमसे वैल्यू मांग रहा है टेम्परेचर के लिए। अब मैं देता हूँ इसको 40। जब मैं 40 देता हूँ तो मेरे पास दूसरा जो F वाली कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट हुई, और वो क्या है, द टेम्परेचर इज़ हाई विच इज़ 40, टर्न ऑन द AC। क्योंकि हमने पहले में यहाँ पर जो क्लियर लाइन नहीं किया हुआ था, कैरेज रिटर्न नहीं किया हुआ था, इस वजह से हमारे पास ये क्लिप्स जो है वो एक ही लाइन में आ गया। तो ये हम सिंपल इफ़ देन कंडीशंस लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस रख सकते हैं। अगर तो वो बिलो ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इस तरह के हम ऑप्शंस रख सकते हैं। लेकिन सिंपल आपको ये सिखाना था कि हम इफ़ और एल्स की कंडीशन रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने से हम काफ़ी सारे जो सिंपल कंडीशंस हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस प्रेजेंटेशन की तरफ, और हम नई चीज़ सीखेंगे, वो है व्हाइल लूप। अब अगर मैं ये जिस तरह आपको मैंने बताया बार बार मैं कर रहा हूँ रीसेट और रन कर रहा हूँ, अगर मैं इससे बचना चाहूँ और ये वैल्यूज़ में बार बार लेना चाहूँ तो उसके लिए मैं व्हाइल लूप लगा सकता हूँ, और मैं साथ में ये ऑप्शन मेन्यू बना सकता हूँ, और मेन्यू में मैं बताऊँ कि 1 2 3 को प्रेस करें और उसके बाद 1 में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आप वहाँ पर पूरे की पूरी मेन्यू बना सकते हैं। और उसमें ये हो कि आप टेम्परेचर इंटर करें, आप सेंटीग्रेड में देना चाहते हैं, आप फ़ारेनहाइट में देना चाहते हैं, या एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो कौन से कंडीशन में जाना चाहिए। तो वो सारे काम अगर आप करना चाहते हैं तो हमें फिर कोई ना कोई लूपिंग सिस्टम चाहिए होगा जो उस लूप के अंदर हो। हम रूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रूल्स को बार बार कॉल करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल इस वजह से हो जाएगा कि हम लूप वहाँ पर जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार एसर्ट करना होगा और वो रूल को एक्टिवेट करना होगा और फिर रिकॉल करना होगा। अब हम व्हाइल लूप की तरफ जाते हैं। द व्हाइल लूप फंक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू अलाउ सिंपल लूपिंग। इट इज़ यूज इन सिमिलर टू दैट ऑफ द इफ़ फंक्शन। हम सिंपल उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह हम व्हाइल इफ़ कंडीशन हमने यूज़ की है, सेम उसी तरह हम व्हाइल भी यूज़ करते हैं। व्हाइल स्टार्ट होता है, इसका सिंटैक्स ये है, और फिर हम एक्सप्रेशन देते हैं, और फिर हम ये बताते हैं कि डू करना क्या है। उसके बाद वो एक्शंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। अगेन ऑल प्रेडिकेट फंक्शंस आर available for use in while. Any number of allowable action may be placed inside the while block, including if then else or additional while structures. हम काफ़ी जो भी हमारे पास फंक्शन हैं मोस्टली हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम while लूप दोबारा भी लगा सकते हैं, नेस्टेड while लूप हो सकते हैं, हम कंडीशंस लगा सकते हैं, देन कंडीशंस लगा सकते हैं, रूल्स को कॉल कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे जो काम हैं जो हम लूप नॉर्मली प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में करते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। द टेस्ट इज़ परफॉर्म प्रायर टू द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। द एक्शन विद इन द व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड अंटिल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू द सिंबल फॉल्स। और ये हमें पता है कि व्हाइल लूप के दो होते हैं। सी लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं, एक डू वाइल है और एक वाइल डू के सिचुएशन में है। यहाँ पर हमारे पास पहले एक्सप्रेशन चेक होगा, वाइल की एक्सप्रेशन चेक होगी, फिर वो लूप के अंदर जाएगा और लूप को कंटिन्यू करेगा जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए, जब तक कि वो कंडीशन जो एक्सप्रेशन हमने बताया हुआ है वाइल के अंदर जब तक वो फॉल्स नहीं होगा वो लूप चलता रहेगा। The while may optional include the symbol do after the condition and before the first action.
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो डू है ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्शन के परफॉर्म करने से पहले। The break and return function can be used to terminate the loop prematurely. The return value of this function is false unless the return function is used to terminate the loop. हम इसके अंदर ब्रेक और रिटर्न फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो कि लूप को टर्मिनेट कर सकता है दरमियान में भी, ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल लूप चले तो तब हो। तो ये हमारे पास क्योंकि फॉल्स रिटर्न करते हैं तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सिंपली इसके प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा सारी जो रूल मैंने बनाए हुए हैं, ताकि हम दोबारा जो दो रूल बनाएंगे उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। हम डिफ रूल बनाते हैं, नाम इसको हम देते हैं लूप। अब मैं बना क्या रहा हूँ, मैंने सिंपल एक लूप बना रहा हूँ जो कुछ नंबर्स को प्रिंट करे। ये भी मैं इनिशियल फैक्ट को इनिशियलाइज करूँगा ताकि वो ऑटोमेटिकली रन हो। मैं प्रिंट आउट करूँगा, प्रिंट आउट टी, और मैं यहाँ पर कोई बताता हूँ इंटर लूप वैल्यू। मैं लूप के कितनी मरतबा लूप चले उसके लिए वैल्यू डिमांड करूँगा, फिर मैं बाइंड करूँगा इस वैल्यू को वेरिएबल लूप में, और रीड करूँगा मैं जो भी वैल्यू इंटर होगी। अब मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पर सिंपली वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप के लिए मुझे पैरेंथेसिस चाहिए होंगे, वाइल। अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन बताऊँगा। एक्सप्रेशन क्या है, इज ग्रेटर देन लूप जो वेरिएबल है और 0। तो ये करेगा क्या, जब लूप तब तक चलता रहेगा जब तक लूप ग्रेटर है 0 से। तो हम इसमें जो वैल्यू देंगे लूप उतनी मरतबा हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब मैं करता ही हूँ कि मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट आउट करता हूँ, प्रिंट आउट टी टेक्स्ट, और उसमें मैं क्या बताऊँ, मैं सिंपल उसमें एक मैसेज देता हूँ लूप टर्न नंबर लूप, हाँ ये वेरिएबल में बता दूंगा, और उसके बाद मैं कैरेक्टर्स रिटर्न करता हूँ। अब क्योंकि ये लूप वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू होगी, अब इसको हमने डिक्रीमेंट भी करना है, हमने इसको लेकर जाना है। डिपेंड करता है हमने कौन सी कंडीशन रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 रखा हुआ है, वैल्यू कोई 0 से ग्रेटर देन होगी तो हम करेंगे ये कि हम उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे। डिक्रीज़ करने के लिए मैं फिर बाइंड करूँगा, सॉरी जो वेरिएबल है लूप, और मैं माइनस करूँगा उससे हर बार एक वैल्यू लूप 1। अब ये मेरे पास बाइंड हो गया, और अब मैं वाइल लूप को बंद करता हूँ, और अब मैं साथ में जो रूल है उसको भी कंप्लीट करता हूँ। मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास जो रूल है वो एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट हुआ तो हम इसको अब रन करेंगे। तो हम रन कर रहे हैं तो ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, इंटर लूप वैल्यू। लूप वैल्यू हम देते हैं इसको
फॉर एग्जांपल 10। तो ये क्या हुआ, लूप टर्न नंबर 10 और ये डिक्रीज होते हुए हमारे पास 1 तक आ गया, और हमने चूँकि कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन 0, इस वजह से ये जैसे ही 0 पर पहुंचा तो ये रिटर्न होकर हमारे पास फॉल्स हो गया, तो हम लूप से बाहर निकल आए। हम रीसेट करते हैं दोबारा और हम इसमें कोई और वैल्यू देते हैं। अब हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि नंबर डिक्रीमेंटिंग फॉर्म में आ रहे हैं, हम इसको इंक्रीमेंटिंग में कर दें। तो उसके लिए आप सोचें वो किस तरह करना होगा। बहुत सिंपल है, आप उसका कोई हल निकाल सकते हैं। अब हम जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, हम जाएंगे आगे। लूप फॉर काउंट एक और फंक्शन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। द लूप फॉर काउंट फंक्शन इज प्रोवाइडेड टू अलाउ सिंपल आइटरेटिव लूपिंग। ये लूप फॉर काउंट जो है ये सिंपल आइटरेटिव होते हैं, और इसमें क्या होता है, लूप फॉर काउंट हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, रेंज स्पेस देते हैं, कौन सा कितनी मरतबा होना चाहिए, और फिर हम ये बताते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए, हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रेंज स्पेस जो है वो आप बता सकते हैं, जो इनिशियल है स्टार्टिंग, और फिर एंडिंग बता सकते हैं कि कहाँ तक हो। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं। हम लूप वेरिएबल जब बताते हैं, कोई लूप वेरिएबल हमने बनाया और उसमें हमने ये बताया कि उसका स्टार्ट क्या होगा और उसका जो एंड है वो क्या होगा, हमने वो वैल्यूज बता दी और साथ में हम उसको चेंज करते जाएंगे। परफॉर्म्स द गिवन एक्शन द नंबर ऑफ टाइम specified by range space. If start index is not given, it is assumed to be 1. अगर हमने start index नहीं दिया कि start कहाँ से होगा, तो वो normally 1 consider किया जाता है। If a start index is less than end index, then the body of the loop is never executed. हमारे पास सिंपल कंडीशन है, अगर तो स्टार्ट इंडेक्स लेस देन है एंड इंडेक्स से, तो फिर वो लूप स्टार्ट ही नहीं होगी। The integer value of the current iteration can be examined with the loop variable if specified. हम अगर current iteration को चेक करना चाहते हैं तो वो हम लूप के जो वेरिएबल हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। वो हमारे पास ये वाला लूप वेरिएबल जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। The break and return function can be used to terminate the loop prematurely. The return value of this function is false unless the return function is used to terminate the loop. Variables from an outer scope may be used within the loop, but the loop variable, if specified, makes any outer variable of the same name. Loop can be nested. हम nested loop भी लगा सकते हैं और हम साथ में जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम रिटर्न भी कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं लूप को दरमियान में भी। अब इसके लिए हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे इसकी एग्जांपल क्या होगी। अब हम इसके सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हम पहले क्लियर करेंगे, हमने क्लियर किया पिछले रूल्स को। अब इसके लिए हम डायरेक्ट जो है टॉप लेवल पे भी कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर सिंपल इसको देखते हैं कि किस तरह होगा। हम इसको यूज़ कर सकते हैं रूल के अंदर भी। लूप फॉर काउंट, मैं चाहता हूँ कि 2 मरतबा प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में बताऊँगा कि क्या कितनी बार ये चलना चाहिए। और नॉर्मली ये 1 से स्टार्ट होगा, जो क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एंडिंग बताया है, तो स्टार्टिंग जो है वो 1 से होगा। मैंने सिंपल मैसेज
बताया कि ये प्रिंट करो, और अब मैं लूप को क्लोज़ करता हूँ। जब मैंने क्लोज़ किया तो मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड 2 टाइम, क्योंकि जो स्टार्ट था वो 1 से हुआ, और फिर उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स रिटर्न इस वजह से किया कि जब हम 1 पे पहुंच चुके हैं तो नेक्स्ट जो स्टेज था वो 0 था, इस वजह से वो फॉल्स हो गया। तो हम जब भी ये करेंगे हमें ये फॉल्स वैल्यू मिलती जाएगी। अगर तो हम इसको काफ़ी मर्तबा करें तो भी हमारे पास सेम ही फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग जो है वो उससे कम हो, हम 0 देते हैं, तो इस सिचुएशन में वो रन ही नहीं होगा। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि 1 जो है वो स्टार्टिंग था, तो 0 1 से लेस था, इस वजह से वो कॉल ही नहीं हुआ। हम इसके एक छोटी सी और एप्लीकेशन देखते हैं। हम इसको सिंपल कोई वेरिएबल लेते हैं और उसके थ्रू करते हैं। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास एरर आ गया, तो हम इसमें साथ में हम डू लगा देते हैं। डू क्योंकि ऑप्शनल था, हम इस तरह करते हैं कि हम एक नेस्टेड लूप लगा लेते हैं। लूप फॉर काउंट, और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ count2 के नाम से, जो 1 से 3 तक वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। और फिर मैं बताता हूँ दोबारा डू। तो ये दोनों जो हैं, ये डू के बाद मैं ये बताऊँगा कि अब इसने करना क्या है। तो मैं सिंपली प्रिंट आउट, या इस लेवल पे मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। count1 जो पहला वेरिएबल था उसको मैं प्रिंट करता हूँ, फिर मैं स्पेस देता हूँ दूसरे वैल्यू को। तो ये करेगा क्या हमारे पास पहले, क्योंकि मैंने बताया 2 to 4, तो ये 2 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि ये 1 से 3 तक जो है ये हर एक के साथ हर बार प्रिंट होंगे, मतलब ये नेस्टेड लूप लग जाएगा। काउंट 2 F कर दिया। अब मैं एक प्रिंट को बंद करता हूँ, क्लोजिंग लगाता हूँ उसकी। दूसरा जो है एक लूप के लिए था, और तीसरा जो है जो पहला लूप हमने लगाया था उसके लिए था। हम इंटर करते हैं। तो इंटर करने से क्या हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 to 4, तो ये 2 to 4 जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो गई। और क्योंकि अंदर जो लूप था वो लगा हुआ था 1 से 3 तक, तो इस वजह से वो 1 से 3 तक हर एक के साथ आ रहे हैं। सो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 4 आ गया। तो ये जो लूप है ये 2 से लेकर 4 तक जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस काउंट 1 के अंदर रख रहा है, और फिर 1 से लेकर 3 तक जो वैल्यूज़ हैं वो काउंट 2 के अंदर आ रही हैं। और क्योंकि ये लूप है तो अब बार बार ये चेंज हो रहा है, और हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि क्योंकि स्टार्ट ये 1 से होता है तो ये 1 तक आकर रुक जाएगा। तो ये हम सिंपल उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। हम इसको और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग फंक्शन। हम अगर यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना चाहते हैं, हमने मोस्टली तो देख लिए हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन अगर यूज़र डिफाइन फंक्शन हो तो वो कैसे होगा। क्लिप्स अलाउ यू टू डिफाइन योर ओन फंक्शंस विद डिफ फंक्शन। हम डिफ फंक्शन अगर यूज़ करते हैं कीवर्ड, तो उसके थ्रू हम फंक्शन बना सकते हैं। जर्नल सिंटैक्स ऑफ अ डिफ फंक्शन इज़, हम डिफ फंक्शन लिखते हैं, डिफाइन फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम बताते हैं। फिर उसके बाद हम आर्गूमेंट्स बताते हैं कि कितने आर्गूमेंट्स, अगर तो ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। लिस्ट 1 में भी ऑप्शनल मल्टी फील्ड, हम ये कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास मल्टीपल जो फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे उसके अंदर आर्गूमेंट्स दें, हम एक आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको कोई भी आर्गूमेंट ना दें।
एक्शन 1 पर हम ये बताते हैं कि फंक्शन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं. द नेम ऑफ आर्गुमेंट विल नॉट conflict with variable name in a rule if they are the same. जो हम यूज़ करते हैं नेम आर्गुमेंट के अंदर, जो भी नाम यूज़ करते हैं, अगर वो सेम है रूल के नाम के साथ या फंक्शन के नाम के साथ, तो वो हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि ये एक वेरिएबल है और एक जो है रूल का नाम है, क्योंकि वेरिएबल के साथ हम नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. The if function will only return the value of the last action. It may be a function, variable or a constant. Let's check simple example. हम जो return values हैं वो हमारे पास function भी हो सकता है, वो variables भी हो सकते हैं और वो कोई constant values भी हो सकते हैं. तो हम कुछ भी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं. मोस्टली जो हैं वो अलाउ हैं यहाँ पर. तो हम इस तरह करते हैं, हम इसकी जो छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल के लिए हम इंटरफेस पे जाते हैं, शेल पे, एक्लिप्स शेल पे, और यहाँ पर हम क्लियर करते हैं. हमने क्लियर किया. अब हम ये करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं. हम अब यहाँ पर नाम देंगे इसको, फंक्शन को, और इसके लिए कोई आर्गुमेंट्स मैं बता सकता हूँ कि क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए. मैं इसको सिंपली एक वेरिएबल देता हूँ a और फिर वेरिएबल देता हूँ b. अब ये इसके एज अ पैरामीटर आ रहे हैं. माय फंक के नाम से मैंने फंक्शन बनाया और उसके 2 पैरामीटर्स होंगे. यहाँ पर अब मैं एक्शन बताऊंगा कि अब इसने करना क्या है. एक्शन सिंपली मैं ये बताता हूँ कि ये माइनस कर दे. हम इस तरह करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पावर ले लेते हैं, पावर ऑफ a, और फिर a ले लेते हैं. तो अगर हम ये पावर लेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a को a के साथ, तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा. और हम b का भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास b वेरिएबल भी है. दोनों को हम यूज़ कर लेते हैं, b और फिर वेरिएबल b ले लेते हैं. अब ये करेगा क्या, ये फंक्शन सिंपली दोनों का जो है जो भी हो गए यहाँ पर वैल्यूज़, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो दोनों वैल्यूज़ जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएंगे उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब ये मेरे पास सिंपल एक फंक्शन बन गया. मैं अब फंक्शन को क्लोज करता हूँ. फंक्शन क्लोज हो गया, डिफाइन हो गया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आया है. ये बता रहा है कि डिफ फंक्शन. अच्छा, मैंने फंक्शन बना लिया. अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो फंक्शन आ गया. अब ये फंक्शन आ गया. अब मैं इसके लिए कोई रूल बनाता हूँ, डिफ रूल, ताकि मैं इसको कॉल कर लूँ. इनपुट के नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ. अब मैं करता ये हूँ कि इसको मैं कोई 2 वैल्यूज़ मैं इनपुट के तौर पे दूंगा. इस तरह करते हैं. पहले हम इसके लिए कोई फंक्शन रूल बनाते हैं जो इस फंक्शन को कॉल करे और फिर हम वहाँ पर वैल्यूज़ ले लें. तो मैं कैलकुलेटर के नाम से बना लेता हूँ और फिर एक इसके पैरामीटर्स रखता हूँ, नंबर्स a, और फिर वेरिएबल b आ जाएगा. अगर तो ये मैच होते हैं तो फिर क्या करेगा, ये सिंपली प्रिंट आउट हम यहाँ पर कर देते हैं. प्रिंट आउट t a, और हम ये बताते हैं कि ये क्योंकि पावर है
हम 2 कर देते हैं यहाँ पर। जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, हम वो फार्मूला बता देते हैं कि हमने किस फार्मूले से किया हुआ है ताकि यूज़र को पता हो। इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप ये भी देख लें कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। माय फंक के नाम से जो फंक्शन था उसको कॉल किया, और अब मैं यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली साथ ही होंगे, वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होंगे। और भी ये प्रिंट आउट के लिए हो गया और ये हो गया रूल के लिए। ये मैंने एक रूल इंटर कर दिया और इसके बाद मैं बताता हूँ यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ। इनपुट के नाम से हम बना लेते हैं फंक्शन, और सिंपल हम इसको रीसेट के ऊपर ही कॉल कर लेते हैं। प्रिंट आउट टी, हम अब यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। ये हम इंटर करते हैं। अब जब हम इंटर करेंगे तो इसके बाद हम बाइंड करेंगे वैल्यू को, एक के साथ कर दिया। और ये बार बार यूज़ हो रहे हैं लेकिन ये सेम वेरिएबल नहीं होते। जब हम इसको पास करेंगे तो ज़ाहिर है वो आगे चला जाएगा। हम इसको दूसरा वैल्यू देते हैं, प्रिंट आउट टी, इंटर वैल्यू 2। अब हम इसको भी बाइंड करते हैं बी के साथ और रीड करते हैं। अब ये हमारे पास आ गए वैल्यूज़। सिंपली अब हम इसको एज अ assert यूज़ करते हैं। assert जो हम, क्योंकि यहाँ हमारे पास फंक्शन इस रूल को एक्टिवेट करने के लिए साथ में नंबर भी है, इस वजह से हम ये नंबर भी बता देंगे एज अ स्टैटिक। ये सेट हो गया। अब इसके बाद हम रूल को क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली हम इनपुट के लिए हमने वैल्यूज़ एक ले ली और दूसरी वैल्यू ले ली। यहाँ पर हमारे पास ये टी मिसप्रिंट हुआ है, और दोनों वैल्यू को हमने फिर एसर्ट कर दिया एज अ फैक्ट। और जब ये एसर्ट होंगे तो ये इस रूल को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे पास इससे पहले का रूल है, जिसमें हम सिंपल प्रिंट आउट कर रहे हैं। अब प्रिंट आउट कर रहे हैं लेकिन वो साथ में फंक्शन को कॉल भी कर रहा है, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा तो जो ऊपर हमारा फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सारे आपस में लिंक हैं। अब क्योंकि हम यहाँ देखते हैं रूल जो था वो एक्टिवेट हो गया, हम इसको रन करते हैं। रन। अब ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है फर्स्ट, मैं देता हूँ इसको फर्स्ट वैल्यू 2 और सेकंड वैल्यू देता हूँ 3। तो ये मेरे पास अब वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन के बाद के अगर 2 की पावर लेते हैं हम 2 और 3 की पावर लेते हैं 2, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी और वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो उससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास। अब हम आगे जाएंगे और हम कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिसको हम देखते हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, वो कैसे काम करेंगे हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जो सिंपल करता ये है कि आप उसको मल्टीपल
वैल्यूज़ देते हैं एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वो करेगा क्या कि वो इन सब को कंबाइन कर देगा। हम अब करते ये हैं कि इसको सिंपली कॉल करते हैं, तो आप देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह काम करेगा। हमने डिफरेंट इसमें वैल्यूज़ दिए हैं और हम इसको जब कॉल करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है उसको सारे को कंबाइन कर देता है, जो भी हम इसके अंदर वैल्यूज़ देते हैं। हम यहाँ पर अगर कोई और भी देते हैं, ऑफ और तो ये करेगा क्या, ये सबको कंबाइन कर देगा। अगर आप देखें यहाँ पर स्पेस भी थी, लेकिन वो स्पेस भी इसने कंबाइन कर दिया। ये स्पेस एक्चुअली अब एज अ स्पेस काउंट नहीं होगी, ये सारा एक ही सिंबल है। तो हम इस तरह के डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं सब स्ट्रिंग के नाम से 4 और 6। इसमें हम नंबर बताते हैं कि कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक ये उसकी सब स्ट्रिंग बना ले। तो हम इसको सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं तो और समझ आ जाएगी हमें और डिटेल से। सिंपल मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमें बताता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू नंबर 4 से शुरू होता है और 6 तक है, तो वो हमें एज अ सब स्ट्रिंग दे देता है। इसको अगर मैं चेंज करूं 6 की बजाय मैं इसको बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 से लेकर 6 तक, तो ये उसमें फिर ABC जो स्टार्ट वाले हैं वो भी आ जाएंगे। तो जो भी 1 से लेकर 6 तक जितने भी हैं उसके अंदर स्ट्रिंग में, वो उनको हर एक करैक्टर को अलग कर देता है, उसकी सब स्ट्रिंग बना लेता है। हम इसके बाद अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे हैं, आप नेट से देख भी सकते हैं। अगर तो हम अपर केस में करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको स्ट्रिंग देते हैं तो वो सिंपली उसको अपर केस में कर देगा। आप इसको एग्जीक्यूट करें, आपको इसका आउटपुट नज़र आ जाएगा। फिर हम अगर लोअर केस में लाना चाहते हैं किसी भी जो सिंबल है उसको, तो वो हम अगर राइट करते हैं यहाँ पर, ये अंडरस्कोर इस वजह से है कि हम यहाँ पर सिंपल एक सिंबल दे सकते हैं, एक वैल्यू दे सकते हैं स्पेस के अलावा, तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्योंकि हम एक वर्ड देना चाह रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस देना चाह रहे हैं, तो वो हम अंडरस्कोर के साथ कंबाइन कर लेंगे। फिर आपको असाइनमेंट के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम इसको लोअर केस में कर लेते हैं तो दरमियान में हमारे पास ये भी आ जाएंगे। तो ये जो आएंगे तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, हम इसको रिमूव कर सकते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करते हुए। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट के नाम से एक और फंक्शन है जो करता ये है कि जो भी आप वेरिएबल कोई बनाते हैं स्ट्रिंग की, जो जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, तो उनको वो आपको बता देगा कि इसके अंदर फर्स्ट कौन सी वैल्यू है, तो वो आप निकाल सकते हैं इससे। फिर हमारे पास लेंथ का है, लेंथ के लिए भी हम सेम अगर कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल के तौर पर। तो ये हमें ये 4 रिटर्न करेगा कि ये कितनी लेंथ है, इसमें स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। और हम इंसर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास ये वेरिएबल है और ये बताते हैं हम कि एक स्ट्रिंग्स हैं और ये दूसरे हैं, मल्टीपल सिंबल्स हैं। तो हम ये बताते हैं कि ये लोकेशन नंबर 2 पे जाकर वहाँ पर इसको इंसर्ट कर दे, तो ये वाली वैल्यू उठाएगा, ये B, C और D को उठाएगा और ये लेकर जाएगा 2 वाली लोकेशन पे। तो स्टार्ट करेगा ये यहाँ से और B, C और D साथ में ऐड कर देगा। हम इसको सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमने राइट किया और इसमें हमने देखा कि ये A, B और C और D को इसने स्टार्ट किया है लोकेशन नंबर 2 से। तो यहाँ का जो होगा नॉर्मली ये क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, तो जो 1 है हमारे पास स्लाइड में मैंने आपको बताया
कि ये लोकेशन नंबर ई से स्टार्ट करेगा, लेकिन क्योंकि हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2 जो लोकेशन है, लोकेशन नंबर 2 से ये ऑनवर्ड्स इसको एम्बेड कर देगा। तो ए के बाद ए क्योंकि 1 लोकेशन पे है तो 2 लोकेशन से स्टार्ट करेगा और 2 जो है वो ई से पहले आता है। तो हम वापस जाएंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और जो हमने बेसिक चीज़ें सीखी वो इम्पोर्टेंट थी, जिसमें इफ़ और देन एल्स कंडीशंस थी, वो देखा हमने, और साथ में हमने लूप देखा कि हम लूप कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर हम यूज़र डिफाइन फंक्शंस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो हमने एक एग्जांपल से सीखा। और साथ में हमने ये देखा कि हम लूप फॉर काउंट कैसे कर सकते हैं। ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है और इसके थोड़े बहुत फीचर्स हमने देखे कि हम 2 तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। लूप विद इन लूप भी हमने चेक किया और साथ में हमने छोटे से चंद एक फीचर्स देखे जो हमारे लिए मुख्तलिफ सिचुएशन में काफ़ी यूज़फुल हैं। हम आप और भी देख सकते हैं, रैंडम के नाम से देख सकते हैं कि रैंडम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। इससे हम इस तरह के कनकैटिनेट कर सकते हैं, हम स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर इसके मैनुअल में जाएं, रेफरेंस मैनुअल में, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।